ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਏ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ BSF ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ NIA ਨੇ ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾਲ ਹੀ। ਤਾਂ DGP ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕ੍ਰਿਤਿ ਹੈਗਾ ISI ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ BJP ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡ ਨੂੰ, DGP ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ FIR ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੰਬ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ 20 ਫਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, 31 ਹੋਰ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ BJP ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ISI ਬੇਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਚਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਡੈਫੀਮੇਸ਼ਨ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ DGP ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ DGP ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ CM ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ FIR ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਖੜੇ ਆ, ਕਰ ਦਿਓ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ। ठीक है। प्रताप सिंह बाजवा जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि पंजाब में इतने बॉम्ब है जो आ चुके हैं, तो उनको सरकार ने ये पूछा कि आपके पास कौन से सबूत हैं, अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो बताइए, नहीं तो आपके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी। तो प्रताप सिंह बाजवा के ऊपर FIR दर्ज की गई। और सेम पैटर्न के ऊपर अगर, क्योंकि पंजाब के DGP बम ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान, ISI और खालिस्तान संगठनों का हाथ बता रहे हैं और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हाथ बता रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को ये बात साबित करनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है। आज हमारे सारे नेतागण, जलंधर के कार्यकर्ता आज खुद चल के पुलिस कमिश्नर के ऑफिस में आए हैं कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाए अगर हम दोषी हैं। तो अगर हम दोषी नहीं हैं, अगर मुख्यमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मुख्यमंत्री साहब के ऊपर FIR दर्ज की जाए। आज सारी भारतीय जनता पार्टी पूरे पंजाब में हर जिले में जो मेमोरेंडम है पुलिस को दे रही है। आज लगता है आपको कार्रवाई होगी CM भगवंत सिंह मान के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिया गया, अमृतसर और जलंधर को भी जोड़ा गया और DGP गौरव यादव के द्वारा जो बयान दिया गया उस चीज को भी कहीं ना देखो, कार्रवाइयाँ जो आम आदमी पार्टी करती है वो सिर्फ वो कार्रवाई करती है जिससे उनकी शानो शौकत बढ़े। अपने कई MLA उनके ऊपर इन्होंने अपने आप को बहुत कट्टर ईमानदार पार्टी होने का
इनके ऊपर वो लगा रहे टैग, तो उनके ऊपर पर्चे किए। आज वही एमएलए दोबारा जेल काट के जमानत पे आके सिक्योरिटियां लेकर के और वही तामझाम से वो लोग घूम रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों को वो मूर्ख बनाने की जो चाल है, ये आम आदमी पार्टी की हमेशा रहती है। यात्रा के दौरान उनकी तरफ से बोला गया कि हिंदू और सिखों को आपस में भिड़वाने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है। भगवंत मान का ये स्टेटमेंट था कल। भगवंत मान साहब अपनी स्टेटमेंट के ऊपर खड़े रहें, और सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, तो कोई सबूत ऐसे जिसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई इन्वॉल्वमेंट हो, तो मुख्यमंत्री साहब को पंजाब के लोगों को सबूत पेश करने चाहिए। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसके बारे में बता दीजिए। प्रोटेस्ट जैसा आप पढ़ रहे हैं कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम केजरीवाल नहीं हैं जो आतंकवादियों के घरों में रहे। आज जो कुछ देखने में दिख रहा है, सारा भारत, सारा पंजाब इस सरकार की जो कुरीतियां, जो सरकार की कमजोरियां और जो उनका नशे में डूबा रहना 5वां साल में भी, वो हमें दिख रहा है। और आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हर बात को दूसरे पे थोप देने की ये जो इनकी प्रथा चला रखी है, इनसे इनको अपनी नींद से, अपनी शराबी हालत की जो नशा है, उससे निकलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पीस लविंग पार्टी है, राष्ट्रीयता की भावना भरी है। उसने आज देश के हर शख्स में भारतीय होने पे गर्व करने के लिए जागृत किया है। और नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह जी और हमारी पूर्ण जो संस्था है यहाँ की, एक परिवार की तरह काम कर रही है कि हिंदुस्तान जो भारतीयों का हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, सनातनियों का देश है, और वहाँ पर आतंकवाद की कोई जगह ना है, ना होगी, ना कभी रहने दी जाएगी। सो हमारा आज का प्रोटेस्ट आदरणीय मुख्यमंत्री जी की आंखें खोलने की है कि आप जो भी करते हैं वो तो जग जाहिर है, लेकिन आप कृपा अपनी इस नशे की हालत में, अब 5वां साल हो गया, निकल आइए और दूसरों पे तहमत घड़ने की बजाय, डरने की बजाय, वो अपने अंदर गिरा वह में झांके कि उन्होंने पंजाब को कहां से कहां पहुंचा दिया। और आज हम बड़े दुख से कहते हैं कि उनके इस 5वें साल में भी हम सबको, भारतवासियों को और ख़ास तौर पे हमारे पंजाब वासियों को मेमोरेंडम देने पड़ रहे हैं कि हमें इनसे जल्दी मुक्ति मिले। और अगर इन्होंने ये बातें जो कही हैं, अगर ये इनका सबूत रखती हैं, तब तो सबूत लेके आए, नहीं तो सार्वजनिक जगह पे खड़े होके सारे पंजाब के एक एक शख्स से, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टियां, उनसे वो नतमस्तक होके माफ़ी मांगे कि उन्होंने सबको आतंकवादी कहे।